سستا آٹا لینے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کر لیا۔ سٹور کے باہر مرد و خواتین کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ سخت گرمی میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کہوٹہ سے ندیم آزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر سستا آٹا کئی ماہ کے بعد پہنچتے ہی شہریوں کی کثیر تعداد نے سٹور کا رخ کر لیا۔ سٹور پر بدنظمی، لمبی لمبی لائنیں، مرد و خواتین ذلیل و خوار ہونے لگے۔ حکومت کی جانب سے 10 کلو کے ٹوٹل 250 بیگ فروخت کے لیے دیے گئے، جو کہ تقریباً 2 لاکھ سے زائد آبادی رکھنے والے تحصیل کوہوٹہ کی عوام کے لیے ناکافی ہیں۔ ضعیف العمر لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے، اے سی سے کم از کم یہاں پہ ٹوکن سسٹم تو کروا دے تاکہ یہاں پہ اتنا ڈسٹربنگ بھی نہ ہو۔ پہ ہم آئے ہیں جی آٹا لینے کے لیے، نہ چینی مل رہی ہے، نہ آٹا مل رہا ہے، نہ گھی مل رہا ہے۔ گزشتہ دنوں سے یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا، چینی اور گھی غائب۔ عوام حکومت سبسڈی سے محروم ہو کر مہنگے داموں اشیاء خورد و نوش خریدنے پر مجبور ہیں۔ عوام نے حکومتی نمائندگان اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا، گھی، چینی سمیت دیگر سبسڈی اشیاء خورد و نوش وافر مقدار میں دستیابی کو یقینی بنائیں تاکہ غریب عوام حکومتی اقدامات سے مستفید ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم آزاد، سچ نیوز، کوہوٹہ۔ پپلا میں مرغی کا گوشت خریدنا شہریوں کے لیے خواب بن گیا۔ آئے روز مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں راؤ عمران۔ پپلا میں مرغی کے ریٹ میں روز بروز اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بکرے کا گوشت تو پہلے ہی قوت خرید سے دور ہے اور اب مرغی کے گوشت کے ریٹ بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ 160 روپے کا پاؤ جی، 500 روپے دیہڑی کمائی جی۔ اب گوشت لیں، گھی لیں یا سبزی لیں، 500 روپے کما کر لے آؤں میں جی۔ اب تو گوشت کو دل کر رہا تھا بچوں کا، لینے آیا تو ادھر دیکھ کے گوشت کو بس دل راضی کر رہا ہوں۔ 600 650 روپے بتا رہے ہیں جی۔ دوسری جانب مرغی فروشوں کا کہنا ہے کہ فیڈ کی قیمتیں بڑھنے سے مرغی کی گوشت کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور مرغی کا گوشت خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کم کیا جائے۔ محمد عمران، سچ ٹی وی، پپلا۔ کوٹ میں حضرت امام علی الحق شہید المعروف امام صاحب کا عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، جہاں لاکھوں زائرین عقیدت کے پھول نچھاور کرنے پہنچ گئے۔ وحید احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ برِ صغیر کے وسیع علاقے میں کفر و شرک کے خاتمہ اور دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلے میں اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی خدمات ناقابل فرموش ہیں۔ حضرت امام الحق شہید اور المعروف امام صاحب کا شمار اللہ کی در قصیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے دین حق کا جھنڈا بلند کیا۔ دور دور سے زائرین جو کہ اپنی نیک مرادیں، نیک تمنا لے کے آتے ہیں اور اس ولی کامل کے در سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ امام صاحب کا سالانہ عرس ہر سال محرم کی 5، 6، 7، 8 کو انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، جس میں ملک بھر سے لاکھوں زائرین یہاں پر حاضری دے کر در امام سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ وحید احمد، سچ ٹی وی، سیالکوٹ۔ کمیر شریف میں چاول کی کاشت شروع ہو گئی۔ کسان مختلف اقسام کے چاول کاشت کر رہے ہیں، جبکہ مزدور بھی گرمی کے موسم میں دھان کی فصل میں مزدوری کرنے میں مصروف ہیں۔ اسی حوالے سے افسین سیال کی رپورٹ دیکھیے۔ کمیر شریف میں دھان کی کاشت کا آغاز ہو گیا۔ کسان مختلف اقسام کے چاول کی کاشت کرتے ہیں، جس میں کائنات اور 1509 کی ورائٹیز سر فہرست ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ چاول ایک منافع بخش فصل ہے، بہترین پیداوار کے لیے سخت محنت کی جاتی ہے۔ دوسری جانب چاول کی فصل میں مزدوری کرنے والے مزدور کہتے ہیں کہ سخت گرمی میں محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ 10 بندیاں دی لیبر ہے جی، دیہڑی دے اسی جی 3 کلے لینے ہیں، 3000 روپیہ فی بندہ جی دیہڑی پیندا ہے۔ اللہ دا شکر ہے جی، حق لال دی کمائنے ہیں جی، حق لال دی کھانے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومتی سطح پر کسانوں کو ریلیف دیا جائے اور چاول کے کاشتکاروں کی طرف توجہ دی جائے تو یقیناً ہمارا ملک چاول کی پیداوار میں خود کفیل بن سکتا ہے۔ کیمرہ مین محمد ریاض کے ساتھ محمد افسن سیال، سچ نیوز، کمیر شریف۔ موسم گرما میں دھوپ کی شدت اور چلنے کے باعث اکثر اوقات دل میں گھبراہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ روزانہ ایک ناشپاتی کھائیں اور بیماریوں سے دور رہیں۔ آج کل اس پھل کا سیزن ہے اور یہ پھل باغات میں اپنی خوب بہار دکھا رہا ہے۔ مزید دیکھیے دانیال احمد بٹ کی یہ رپورٹ۔ اکاڑا کو زرعی اجناس کے حوالے سے بہت اہمیت حاصل ہے، جبکہ اکاڑا شہر انتہائی مفید پھلوں کی پیداوار کے لیے بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ یہ ہرے بھرے درختوں پر لدی ناشپاتی پھل کی ڈالیاں خوبصورت اور دیدہ زیب دکھائی دیتی ہیں۔ اکاڑا کے باغات میں اپنی حکمرانی کرنے والا یہ پھل ناشپاتی اپنی مثال آپ ہے۔ ناشپاتی کا درخت 10 سال تک تیار ہوتا ہے اور اس طویل انتظار کے بعد 150 سال تک پھل دیتا ہے۔ یہ پھل اگست اور ستمبر میں پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ اسے ہم توڑتے ہیں اور سپلائی کرتے ہیں اکاڑا منڈیوں میں، فیصل آباد، ساہیوال،
इस्लामाबाद। मौसम गर्मा में धूप की शिद्दत और चलने के बायस अक्सर औकात दिल में घबराहट का एहसास होता है, तो रोजाना एक नाशपती खाएं और बीमारियों से दूर रहें। नाशपती का इस्तेमाल निहायत मौसर है, हाजमा दुरुस्त रखती है और मसाने की सोजिश दूर करती है। ये फल निज़ामे इन्हज़ाम की कारकर्दगी को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर के साथ साथ मोटापे को भी कम करती है। नाशपती मैदे, जिगर और दिमाग के लिए भी मुफीद है। लोग दूर दराज से इसे खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। ढालियों पर लगा हुआ ये फल इंतहाई दिलकश लगता है। कैमरा टीम के साथ दानियाल अहमद भट्ट, सच न्यूज़, उकाड़ा। मौसम गर्मा की जीनत, जामुन, जायके और लज्जत में अपनी मिसाल आप है। भावलनगर के शहरी जामुन से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। अपने अंदर ढेरों फायदे और ग़िज़ाइयत रखने वाला खुशनुमा और खुश जायका फल जामुन न सिर्फ खाने में मज़ेदार होता है बल्कि बहुत सी इंसानी बीमारियों का इलाज और सेहत के लिए फायदा मंद है। जामुन में कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, सोडियम, विटामिन सी, विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट और पानी जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए नहायत ज़रूरी और मुफीद हैं। ये ब्लड प्रेशर की सतह को नॉर्मल रखने और शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ मैदे और सांस की मुख्तलिफ बीमारियों को भी दूर करता है। हर अमीर और गरीब इससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावलनगर। सैलाबी पानी की तबाहकारियां थम ना सकीं। दरिया सतलुज और रावी में दरमियानी दर्जे का सैलाब है। बहावलनगर, पाकपतन और आरिफवाला में मुतअद्दिद हिफाजती बंद छूट गए। हालिया मानसून बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाब के बायस मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे के सैलाब के बायस बहावलनगर में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। दरिया बेल्ट से मुल्हिका 86 मुआज़ियात के दर्जनों आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मोमिका के करीब बंद टूटने से मोमिका, तोगीरा, हटहाड़, जंडे का और मुतादिद आबादियों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी के चारों अतराफ से घेराव की वजह से लोगों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू की टीमों ने पानी में फंसे हजारों अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। आरिफवाला में भी दरिया सतलुज में पानी का बहाव मजीद तेज हो गया। बिफरे सैलाबी रैले से मुख्तलिफ मकामात पर कई हिफाजती बंद टूट गए। बस्ती बोरे के मकाम पर सड़क सैलाबी रैले की नजर हो गई। कई देहात का जमीनी राब्ता भी कट गया। हजारों एकड़ रकबा सैलाब की लपेट में आने से लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। पाकपतन शरीफ की बस्ती सिलदेरा का बंद टूट गया। अवाम ने नकल मकानी शुरू कर दी। कसूर में हालिया बारिशों से दरिया सतलुज में पानी की सतह कम न हो सकी। ताहाल निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। गंडा सिंह के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह 20 फुट पर है। सैलाबी सूरत हाल होने के बावजूद इंतजामिया मुतासरीन को बेयार मददगार छोड़कर फरार। दरिया रावी में हेडबलोकी के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा हुआ है। फरीदाबाद में आरजी हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद इलाके रेले की जद में आ गए हैं। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख कहते हैं सिंध हुकूमत ने पूरे सिंध में 21 लाख घरों का सर्वे किया है। 600 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है। शिकारपुर में सिंध हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल के सैलाब मुतासरीन में मकानात की तामीर के लिए प्लाट्स के मालिकाना हुकूक के सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख ने कहा कि गुज़श्ता साल की बारिशों ने आवाम के लिए बहुत परेशानी लाई थी, जिसमें सिंध में 1.5 करोड़ अफराद मुतासर हुए थे। इसके बावजूद हुकूमत सिंध सबके पास पहुँचकर इन्हें रिलीफ पहुँचाया और इन्हें खाना, राशन और इलाज की सहूलियात फराहम की। तकरीब के इख्तिताम पर सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख, चेयरमैन ज़िला काउंसिल जुल्फ़िकार खान कुमारियो, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबुल खान भयो ने 30 अफराद में प्लॉट्स के मालिकाना सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। हासिलपुर में होने वाली हालिया मानसून बारिशों ने इंतजामिया की नाअहली की कलई खोल दी। बरसाती नाला ना होने के बायस शहर भर का पानी हासिलपुर के इकलौते इलामा इकबाल पार्क में दाखिल हो गया। रिपोर्ट करेंगे सैयद मुबारक अली शमसी। हासिलपुर में होने वाली हालिया मानसून बारिशों ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल कर रख दिया है। बरसाती नाला ना होने की वजह से शहर भर का पानी हासिलपुर के इकलौते इलामा इकबाल पार्क में दाखिल हो गया। पानी भर जाने के बायस खूबसूरत पार्क नदी नालों के मनाजिर पेश कर रहा है, जबकि पार्क में खड़े इस बदबूदार पानी ने इलाका मकीनों का जीना दो भर कर दिया है। मुसलसल बारिशों की वजह से पानी बढ़ रहा है, जिस पर गंदी मक्खियां और मच्छर परवरिश पा रहे हैं, जिससे वबाई अमराज फूटने का खदशा है। मानसून की ज़बरदस्त
बारिश ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। हासिलपुर के लोगों की महरूमी कह लें, नींद की नाअहली कह लें और सियासतदानों की भी नाअहली कि जो बरसाती नाले का प्रोजेक्ट था सबका नज़ामत दौर में करप्शन की नज़र हो गया है। शहरियों ने इंतज़ामिया से फौरी तौर पर पार्क से पानी को हटाने का पुरजोर मुतालबा किया है ताकि वो वबाई अमराज से बचने के साथ साथ आग बरसाते सूरज की गर्मी से बचने के लिए पार्क का रुख कर सकें। कैमरामैन मकबूल हुसैन खिच्ची के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज़ हासिलपुर। पाक वतन शरीफ में सैलाबी सूरत हाल के बाद मुखय्यर हजरात मैदान में आ गए। दर्द दिल रखने वाले अफराद गरीब आवाम को खाना और राशन देने पहुंच गए। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पाक पतन शरीफ के दरिया सतलुज ने हर तरफ तबाही मचा दी, हर तरफ पानी ही पानी, कई इलाकों का जमीनी राब्ता भी खत्म हो चुका है। हुकूमत और इंतजामिया गरीब आवाम जो पानी में डूबी हुई है उसकी वाली वारिस तो ना बनी। अलबत्ता दर्द दिल रखने वाले मुखय्यर हजरात मरकजी मुस्लिम लीग के नौजवान महंगल आबादी पहुँच गए। आज हमारी टीमों ने यहाँ पे सर्वे कर लिया है, यहाँ पर आज खाना भी तकसीम किया गया, अभी फिर हम दोबारा खाना तकसीम करेंगे जो मुतासरीन है। कल यहाँ पर मेडिकल कैंप हम इस्टेब्लिश कर देंगे और एक फ्लड रिलीफ कैंप यहाँ पे कल इस्टेब्लिश हो जाएगा। अवाम का मजीद कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया तो हमारी मदद को अब तक न पहुंची। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नौजवानों ने पहुंचकर हमारी मदद की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ओहदेदारों का कहना है कि पहले मरले में खाना, दूसरे में मेडिकल और उस वक्त तक इनके साथ है जब तक इनकी घरों में वापसी और इनके घरों की तमीर नहीं होती। कैमरामैन राशिद अंजराह के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक पतन शरीफ। फैज़गंज में मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। तूफानी बारिश के सबब काश्तकारों की लाखों रुपए की फसलें तबाह हो गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमदाद चांद। मानसून की बारिश ने फैज़गंज में तबाही मचा दी। कपास और दीगर फसल मुकम्मल तबाह हो गए। पहले ही काश्तकार दुखों में मुब्तला थे तो इस साल भी बारिश आ पहुंची, जिसके बायस काश्तकारों के दुखों में इजाफा बन गया। काश्तकारों का कहना है कि अगले साल फसल तबाह हो गई, हुकूमत की जानिब कोई मुआवजा न मिला। यहाँ फैज़गंज में फसल बिल्कुल तबाह हो गए पिछले साल की तरह। पिछले साल गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम मुआवजा देंगे, खाद देंगे, बीज देंगे, ऐलान तो किया, शायद मिला भी होगा, लेकिन वो सोर्स वाले जो लोग हैं वो खा गए। सैलाब आया था, कुछ नहीं मिला। अभी भी बहुत सैलाब है। हुकूमत ने ऐलान किया था भाई हम देंगे, अभी तक कुछ नहीं मिला। अब जरूरत इस बात की है कि हुकूमत नोटिस लेकर आबादगारों की माली मदद करें। कैमरामैन मशद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़ फैज़गंज। तहसील मोरो भी बरसाती पानी की लपेट में आ गई। जगह जगह पानी जमा रहने से शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं दाइम दरसानी। मोरो शहर के तमाम वार्ड्स में बरसात का गंदा पानी मौजूद होने से शहरी सख्त परेशान हैं। शहरियों की जानिब से कई बार म्यूनसिपल इंतजामिया को शिकायत की गई है, मगर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से शहर से बरसात का पानी निकालने के लिए कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदों की तरह मोरो शहर के अफसरान भी मोरो शहर से मुकम्मल तौर पर लातल की इख्तियार कर लिए, जिसकी वजह से पूरा शहर मोरो गंदे पानी की लपेट में आ चुका है। मोरो शहर के शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर शहर भर से बरसात का पानी निकाल किया जाए और शहरियों को सहूलत फराहम की जाए। कैमरामैन अनीस कुराई के साथ दाइम दरसाई, सच टीवी न्यूज़ मोरो। सखर में बरसने वाली बारान रहमत शहर की इंतजामिया की लापरवाही से जहमत बन गई। रिहायशी और तिजारती इलाके गंदे नालों में तब्दील हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सखर से जाहिद शेख। सखर में बारिश के बाद सखर इंतजामिया की मिसाली कारकर्दगी की कलई खुल गई। इंतजामिया की गफलत के बाइस शहर के रिहायशी, तिजारती और कारोबारी मराकज और शराय गंदे नालों में तब्दील हो गयी, जबकि बरसात के कई घंटों बाद भी पानी की निकासी ना हो सकी। बिल्कुल बरसात की फोरकास्ट थी और फिर अल्लाह ताला की जो रहमत है ये इतनी बरस थी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। काफ़ी बेहतर सूरत हाल हो गई है वहाँ पर भी कि अब जो पहले जो 5-5 फुट 4-4 फुट पानी था वहाँ पे पानी नहीं है। सखर इंतजामिया की जानिब से सफाई के बुलंद बांग दावों के बावजूद अब तक मुतासरा इलाकों से बरसात का पानी ना निकाला जा सका, जिसके बाइस शहर में वबाई अमराज फैलने का खदशा है। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़ सखर। ओवरटेक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की तरफ से अचानक पार्किंग फीस में कई गुना इजाफा कर दिया। पार्किंग फीस में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोबा टैक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया ने अपनी मर्जी से मोटरसाइकिल रक्षा गाड़ी की पार्किंग फीस में कई गुना इजाफा कर दिया है। म्यूनसिपल कमेटी की जानब से पार्किंग फीस माहाना 150 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। शहर में मुख्तलिफ सड़कों, पब्लिक मकामात, दफातर में निजी सरकारी अस्पतालों में आने वालों की सहूलत के लिए मोटरसाइकिल गाड़ियों और रक्षे खड़े करने के लिए पार्किंग बनाई गई। म्यूनसिपल कमेटी की जानब से पार्किंग फीस में खुद साख्ता इजाफे के खिलाफ मोटरसाइकिल रक्षा यूनिट की जानब से शहबाज चौक में एहतजाज किया गया। रक्षा ड्राइवर का कहना
कहना है महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है, घर का निजाम चलाना मुश्किल हो गया है। म्यूनसिपल पर्ची में यकदम 3 गुना का इजाफा कर दिया गया है, जो टोबा टैक्सिंग में रिक्शा ड्राइवरों के साथ ज्यादती है। रिक्शा ड्राइवर ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पार्किंग फीस में इजाफे को फिलफौर वापस लिया जाए, वरना शहबाज चौक में धरना देंगे। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सिंग। दरियाए रावी बिफर गया, कबीरवाला के नवाही इलाकों के घरों में पानी दाखिल होने लगा। मजीद जानते हैं सैयद अली रजा नकवी की इस रिपोर्ट में। कबीरवाला दरियाए रावी और चनाब में सैलाबी रेला आने से कबीरवाला के दही इलाकाजात में पानी दाखिल। कबीरवाला के नवाही इलाके कुंड सरगाना जो दरियाए रावी और चनाब का संगम कहलाता है, जहां पर दरियाए रावी और चनाब का पानी इकट्ठा हो जाता है। दोनों दरियाओं ने नवाही इलाके कुंड सरगाना, बड़ा सरगाना, जहाना मिराली, कतालपुर, शुक्रवाला में तबाही मचा दी। अपनी मदद आपके तहत बनने वाले बंद भी टूट चुके हैं, पानी घरों में दाखिल हो चुका है। इलाका मकीन अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। साल भर के खाने के लिए रखी गई गंदम भी दरिया बहा कर ले गया। कई सौ एकड़ तैयार फसल, तिल, धान, कमान, कपास, जवार ज़ेरे आब हो चुकी हैं। दरिया रावी दे विच पानी आवन दे नाल साडे घरां दे विच पानी दाखिल हो गया जी। फसल बुड़ गए जी, माल लुढ़ गए जी। हुकूमत नूं अपील है मदद कीती जावे, कोई इंतजाम कोई नहीं हुकूमत दा जी। रावी में पानी आ गया, साडी फसलां बुड़ गई हैं, साडे घर में पानी दाखिल हो गया जी, तो लिहाजा हुकूमत मेहरबानी करके इमदाद करे। का मुतालबा है कि ज़रिए हुकूमत फौरी तौर पर सरकारी मशीनरी भेजकर सैलाब से मजीद तबाही से बचने के लिए इकदाम करे। इलाका मकीनों ने सैलाबी सूरत से निपटने के लिए ज़िलाई हुकूमत खानेवाल से इमदादी कार्रवाइयाँ करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़, कबीरवाला। कमालिया में दरियाए रावी मिल फतियाना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। मकामी ज़मींदारों ने जो अपनी मदद के तहत बंद बनाया था वो टूट गया, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ ज़रिए राजी ज़ेरे आब आ गई है। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया दरिया रावी मल फतियाना के मुकाम पर 35,000 क्यूसेक पानी की आमद के बाद ज़मीनी कटाव से मुकामी ज़मींदारों का अपनी मदद आपके तहत बनाया गया बंद टूट गया, जिसके बायस दरियाई बीट के अंदर आने वाली फसलें और मकान ज़ेरे आब आ गया, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है। जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे कैंपों में महदूद दिखाई दे रही है। टूटने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ भाईजान, इधर मल फतियाने में भी और खिची एड जलोका है मौजा, इधर बहुत नुकसान हुआ है। कोई बंदा इत्थे साडी कोई देखभाल नहीं करन आया। ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪ ਅਸਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ हुकूमत ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कारकर्दगी नहीं दिखाई। मुतासरा जिम्मेदारों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद रही है। अगर बंद को मजबूत कर दिया जाता तो जिम्मेदारों को नुकसान से बचाया जा सकता था। सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई, जिससे जिम्मेदारों को भारी नुकसान पहुंचा है। आला हुकाम से अपील है कि सर्वे करवाकर मुतासरा काश्तकारों के नुकसान का अजाला किया जाए। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।